December 8, 2022, quite a historic day it's turning out to be for the BJP in the home state of the Prime Minister and the current Home Minister in Gujarat. Because they've breached the mark of 150 in the assembly elections after the disappointment of 2017. And if they've bounced back and how? Because they have crossed the record of 149 by Madhav Singh Solanki in 1985 for the Congress. They have, of course, bettered their own previous performance, but this is historic by any yards. Their vote share has also gone up to 53-54%. I am joined by Group Editor Convergence, Brijesh Singh, and Brijesh knows Gujarat politics better than anybody else in our newsroom. Brijesh ji, is this what the BJP expected, or honestly speaking, this has exceeded their expectations? In fact, this is beyond expectation, even from the point of view of BJP also, because 149 plus, it was a dream for last 2 decades. Because in 1985, the Madhav Singh Solanki, then Chief Minister of Gujarat, he achieved the figure of 149, but the 1985, it was altogether a very different ball game, because in 1985 there was one very solid caste equation that is known in Gujarat politics as KHAM, Kshatriya, Harijan, Adivasi and Muslim, and basically this was in the backdrop of the quota agitation and the quota reservation that was given by Solanki for the OBCs. But after that, the growth of BJP, if you look at the history of Gujarat, even during the Jansangh days, for the very first time in 1967, they got just 1 seat from Rajkot. After that, in the next election in 1972, it was 3. Then in 1975, it was 18. But then came the 1980, and in 1980, they drastically come down to 9. And then they progressed in 1985, the great election of 1985, when Congress achieved 149, it was only 11. And from 11, in 90, they went to 67. And from 67, they formed their own government in 95 with 121 seats. But again, in the next election, they achieved 117. And then, in 2002, what happened? Post Godhra, under the leadership of Narendra Modi, BJP got 127. That was the highest till this the date we are discussing. Now they have improved from 127 to 150 plus. And this 149 record breaking, it was a dream that come true today. ड्रीम कम ट्रू की हम बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, आप देखिए ट्राइबल सीट, अर्बन सीट, रूरल सीट, पाटीदार डोमिनेटेड, ओबीसी डोमिनेटेड, सब तरह की सीट पे अब तो बिल्कुल ही सैफरन स्वीप हो गया। मुझे लगता है शिवानी, आज के दिन कुछ भी एनालाइज करने के लिए नहीं बचा है। आप किस इक्वेशन की, किस कास्ट फैक्टर की, किस कम्युनिटी ग्रुप की बात करेंगे, किस ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि ना तो कोई कास्ट, ना कोई क्लास, ना कोई ज्योग्राफी। बिकॉज अगर आप गुजरात को ज्योग्राफी में बांट दें, जो 4 मेजर ज्योग्राफी है, सौराष्ट्र, कच्छ, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात एंड साउथ गुजरात, हर जगह बीजेपी ने मैसिव गेन किया। आप अक्रॉस द कम्युनिटी ग्रुप्स बात करें, आप ओबीसी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स की बात करें, अर्बन सीट्स की बात करें, रूरल सीट्स की बात करें, वैसी सीटें आप इमेजिन करिए। मांडवी, सूरत जिले की सीट, जो कि कभी बीजेपी ने नहीं जीती थी, जो कि कांग्रेस की हार्डकोर सीट थी, पहली बार बीजेपी ने वो सीट जीती। आप सूरत की बात करिए, हम लोग चुनाव के पहले चूंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए थे और उसमें जो है आपने वहां पर 27-28 सीटें कॉर्पोरेशन की जीती थी, और अभी जो वीडियो वायरल किए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल की रैली के, वह उस वराछा सीट के थे, जहां पर माना जाता था कि यंग पटेल जो है बिल्कुल आपकी पालकी ढोने में लगे हैं। लेकिन आप देखिए 16 की 16 सीटें सूरत की वह बीजेपी ने इस बार जीती है। पिछले 2 इलेक्शंस में भी नहीं हुए थे, 15 जीती थी, 1 हमेशा कांग्रेस लेके जाती थी। तो आप जो है, चाहे अहमदाबाद हो, सूरत हो, वडोदरा हो, राजकोट हो, ग्रामीण गुजरात हो, ट्राइबल गुजरात हो, मतलब हर एक जगह से बीजेपी ने गेन किए। दूसरी बड़ी बात, आप अभी तक जैसे कि मॉर्निंग में आप एनालाइज कर रहे थे, कहते कि नहीं आपने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। लेकिन जब अगर 54% वोट शेयर हो बीजेपी का, उसमें कौन सा फैक्टर गड़बड़ कर सकता है? तो आपको मुझे लगता है क्लियर कट बीजेपी को
नरेंद्र मोदी को इसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मोदी सबसे बड़े चेहरे थे, उन्हीं के चेहरे पर पूरा चुनाव गुजरात का पिछले एक तरह से कह सकते हैं पिछले 20 साल से लड़ा जा रहा है। हम लोग 2022 में 2002 में उन्होंने अपनी अगुवाई में चुनाव में जीत दिलाई। ये लगातार 5वां इलेक्शन है जो कि गुजरात में मैसिव ढंग से बीजेपी ने जीता है, और यह तो सोने में सुहागा 150 प्लस, न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बारे में आपसे पूछूंगी, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ बिकॉज हमारे बहुत सारे दर्शक, यंग दर्शक भी होंगे, और हम 27 साल के बाद इस तरह का मैंडेट मिलना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे जब पहली बार बीजेपी आई थी सरकार में, और गुजरात में ऐसे बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिन्होंने बीजेपी के अलावा किसी को देखा ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए ब्रजेश जी, आप इतनी गुजरात की पॉलिटिक्स को देखते हुए आए हैं, 1995 के बाद, इवन 1990 से ऐसा क्या बदलाव आ गया गुजरात की पॉलिटिक्स में कि बीजेपी के अलावा कोई चलता ही नहीं है? देखिए, इसके पीछे 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो आप ये देखें कि हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा, खुद नरेंद्र मोदी भी इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप सिर्फ चेहरे के सहारे जो है चुनाव नहीं जीत सकते। आप ध्यान रखें कि उस चेहरे को अगर लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं तो उसको वोट में कन्वर्ट करने और वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने के लिए और अच्छे कैंडिडेट के साथ एक बहुत मजबूत पार्टी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन खुद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खड़ा किया। आप ध्यान रखिए कि जनसंघ के दिनों में ये पार्टी जो है महज कुछ सीटों तक सीमित रहती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 67 में पहली बार एक सीट वो राजकोट से जीते थे, उसके बाद से उन्होंने 3 सीटें नेक्स्ट इलेक्शन में 72 में जीती, 75 में वो 18 सीटों तक गए, लेकिन 1980 में वापस 9 पे आ गए। आप 85 में जो है सो 11 पर गए, लेकिन वहाँ से जो है नरेंद्र मोदी की कमान आ जाती है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि 86-87 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात बीजेपी में एंट्री ली, संघ से जनरल सेक्रेटरी बने, संगठन महामंत्री बीजेपी की गुजरात यूनिट के। उन्होंने 90 में आप देखिए जब वह बिल्कुल की पर्सन थे, जब उन्होंने संगठन को खड़ा किया, बीजेपी 67 सीट्स लेकर आई। और एक तरह से आप देखें तो बीजेपी का डोमिनेंस 1990 से शुरू हो गया था। हम 1995 की चर्चा इसलिए करते हैं कि 1995 से अकेले अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाते आ रही है। अदरवाइज 90 की जो सरकार बनी थी चिमन भाई पटेल के साथ, दोनों पार्टनर थे और इस तरीके से वो सरकार बनी। आप जो है कहेंगे कि फिर आखिर गुजरात में ऐसा क्या है कि 3 जनरेशन हो गए जिन्होंने कि कोई नॉन बीजेपी गवर्नमेंट नहीं देखी। तो इसका कारण जो है वो ये है कि सॉलिड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी डिलीवरी, तीसरा जो है ब्रांड, और चौथा जो है एक लर्निंग, कि आप हमेशा सीखते हैं, अगर कहीं कोई कमियां हैं उसको दूर करते हैं। आप डिसीजन लेने के मामले में रूथलेस हैं। आपने देखा पिछली बार पूरी की पूरी सरकार बदल दी गई, यह किसी दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। और 5वीं जो चीज, मेहनत करने की कैपेसिटी। आप नरेंद्र मोदी का नाम लेके कहते हैं कि अरे मोदी जी ने जिता दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन आप मुझे बताइए इंडियन पॉलिटिक्स में 1947 के बाद मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे एक पार्टी बता दीजिए और एक पॉलिटिकल सुपरस्टार बता दीजिए जो इतनी मेहनत करने को तैयार हो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से गुजरात इनविंसिबल किले के तौर पर बन गया है बीजेपी के लिए, जिसे आप लैब कह लीजिए या फिर उनका जो है स्ट्रॉन्ग सिटाडेल कह दीजिए। तो अब ये जो गुजरात में जो विक्ट्री आई है, जो 53% उनका वोट शेयर बढ़ गया है पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि लगता था कि सैचुरेशन एक है गुजरात पॉलिटिक्स में, बट उसके बावजूद बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है। तो आपको लगता है ये 2024 के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे? देखिए 24 के लिए गुजरात का मैसेज तो ठीक है, क्योंकि देखिए गुजरात में ऑलरेडी 2014 और 2019 इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती। तो गुजरात में फर्दर इम्प्रोवाइजेशन की कोई गुंजाइश नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सॉलिड जो है ढंग से वहाँ जमे हुए हैं, फिर 2024 में 25 की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन गुजरात का जो ये मैसेज है बाकी देश के लिए, क्योंकि आप कल्पना करिए कि अगर गुजरात में नतीजे अगर थोड़े भी कमज़ोर रहे होते तो आज की तारीख में जो पूरा देश का पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, मीडिया है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कहने शुरू कर देते कि भाई देखिए मोदी तो अपने घर में कमज़ोर हो गए, 2024 की बाजी तो उनके हाथ से निकल गई। लेकिन गुजरात ने जो इतने मैसिव मैंडेट के साथ, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का हाथ और बीजेपी का हाथ इतना मजबूत कर दिया है कि शायद ही जो है अपोजिशन में या फिर जो है सो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट का जो ये पूरा ग्रुप है उनमें से कोई ये हिम्मत कर पाएगा कहने की कि मोदी कमजोर हुए। The impact of this massive landslide victory in Gujarat is that even though BJP lost Himachal Pradesh, their vote share was only 1% less, and of course the seat difference was a bit high. Even though they lost Himachal, actually in the national picture, I think the BJP wouldn't mind so much because what the message that Gujarat has given, it doesn't matter if they've lost one state. Yeah, obviously, and if you have to
go through the history of Himachal Pradesh, you know, in 1985 onwards, it's always the change, you know. 1985, you know, and again, it was a game between the Dhumal and the Virbhadra Singh. So again, you know, last time it was Dhumal, however, he lost the election, but this time it's a Virbhadra turn. However, he is no more, you know. So you have to look at the history of Himachal, and again, Himachal is a very small state in comparison to Gujarat, and so the impact of Himachal Pradesh will not be more in national politics as far as the BJP prospects are concerned. अब बात करते हैं जो बाकी दो प्लेयर्स थे सर। कांग्रेस का वोट शेयर बहुत गिर गया है। हमने पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में ये बात करी है कि चाहे इलेक्शन कैंपेनिंग कांग्रेस की नहीं दिख रही हो, लेकिन उनका एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उस वोट बैंक को आम आदमी पार्टी ने काफ़ी हद तक तोड़ा है, 10-12% तक। आप कैसे देखते हैं इस चीज़? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है, बहुत साफ तौर पर है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे। कांग्रेस मेहनत करते हुए नहीं दिखती। आप ये दो राज्य थे, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, जहाँ पर कि सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस का था बीजेपी के साथ। बाकी जगह, बाकी राज्यों में बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर किस तरह की सिचुएशन हो। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप दोनों ही जगहों पर आप अपोजिशन में थे, आप वहाँ पर विक्ट्री के लिए जोरदार कोशिश करते। हिमाचल प्रदेश में चूंकि वहाँ के लोगों का जो मिजाज है उन्होंने चेंज कर दिया, आप जो है सो वहाँ सत्ता पा गए। लेकिन गुजरात में आपने क्या मेहनत की? आप तो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये भरोसा रखें कि लोग जो है अब बीजेपी से नाराज होकर हमें जिता देंगे, तब तो फिर भगवान ही मालिक है। ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा, मुझे लगता है कि आप फैक्टर को भी ज़्यादा रियलिस्टिकली हमें देखने की आवश्यकता है। आप कहें कि आप भले ही नेशनल पार्टी हो गई हो, लेकिन क्या आप अगर गुजरात में न भी होती तो क्या बीजेपी पर के इस नतीजे पर कोई फर्क पड़ता? नहीं। अगर 53% आप वोट शेयर हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी फैक्टर वहाँ लागू होता है। और आप देखिए ना, आप खुद जो है सो 5 सीटों पर जो है सिमट के रह गई है। नहीं, नेशनल पार्टी के लिए मेरे ख्याल से 4 स्टेट्स में आपका एक परसेंटेज होना चाहिए ना, वो तो नहीं है उनका। मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए वो टैग आपको मिल भी गया हो तो भी आप देखिए कि नेशनल पार्टी बनने के लिए, इवन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस से भी अगर आपको कंपेयर करना हो, कांग्रेस मेजर स्टेट्स में बैठी हुई है। आज भी अगर आप देखें, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, अब हिमाचल प्रदेश में भी आ गई, कर्नाटका में काफ़ी उनके स्ट्रॉन्ग चांसेज हैं। तो आप जो है, आप जब तक जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन जैसे बड़े राज्यों में जब तक अपनी मजबूत पहचान नहीं बना पाती, तब तक वो कुछ कर नहीं सकती। और दूसरा, अब देखिए पंजाब में आपने जीत हासिल की आपने, लेकिन आप में इतना भी हौसला नहीं हो पाया कि आप हिमाचल प्रदेश में ढंग से चुनाव लड़ पाते। आप पहली सभा के बाद से वहां से भाग निकले, जबकि आप कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। आप ये कह रही है कि हम गुजरात में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इसलिए हमने हिमाचल में से थोड़ा सा अपना फोकस हटा दिया, क्योंकि हमको लगता था गुजरात में ज़्यादा गेन। नहीं, मुझे लगता है कि आपकी भले ये सोच रही हो, लेकिन आपको ये भी अंदाजा था कि हिमाचल प्रदेश में उसकी दाल नहीं गलने वाली। उनको गुजरात में दाल इसलिए गलती हुई नजर आ रही थी बिकॉज उनको लगा कि वहाँ का जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, पाटीदार, उनका जो यंगस्टर है वो शायद उनके साथ आ जाए। लेकिन जो है, अगर आपको रियलिस्टिकली देखें, अगर अब ये कहें कि भाई बीजेपी के लिए सबसे बड़े चैलेंजर या फिर मोदी के लिए सबसे बड़े चैलेंजर आप या फिर अरविंद केजरीवाल होंगे, तो मुझे लगता है वास्तविकता के धरातल पर ये है नहीं। वो तो उनका कई जगह पोर्ट्राई करने की कोशिश की वो तो उनका रेटोरिक। और मुझे लगता है इन इलेक्शंस के बाद, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात के बाद, उनको भी कुछ सीखना होगा कि वो अपना रेटोरिक इतना ना बढ़ाएं कि वो अपने आप को पीएम का चैलेंजर बताएं। आई थिंक वो सवाल उनके पास भी अब जाएगा। लेकिन आप फ्यूचर क्या देखते हैं इन दोनों पार्टी का? इधर कांग्रेस का तो ऐसा लगता है कि अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है कि कांग्रेस के सामने दो तकलीफ है। एक तो ये कि गांधी नेहरू फैमिली के बाहर कांग्रेस निकलने को आज भी तैयार नहीं है। आप देखिए, चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, इसलिए पूरी पार्टी, जितने भी महत्वपूर्ण नेता जिनकी की जिम्मेदारी इन राज्यों में थी, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। तो जब तक आप गणेश परिक्रमा से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप धरातल की सच्चाइयों को नहीं समझेंगे और जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। कांग्रेस के बारे में कहा यह जाता है कि वहाँ पर नेता ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता कम है। यहाँ पर बीजेपी में है कि यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है, और जो बड़ा से बड़ा जो नेता है, जो मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री भी है, वो भी अपने को बीजेपी का अदना सा कार्यकर्ता कहता है। तो मुझे लगता है यह वो जो डिफरेंस है जो कि बीजेपी को इनविंसिबल बनाता है। लगातार एक्सपेंशन करते हुए पार्टी वो आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार श्रिंक कर रही है। कांग्रेस जब तक अपनी इन कमजोरियों को नहीं सुधारती बीजेपी के मुकाबले, तब तक उसका कोई भविष्य नहीं। इन दोनों पार्टीज में बहुत बड़ा एक गैप हो गया, पूरा एक डे लाइट गैप हो गया है। वो समझ में, कभी कभी हम कांग्रेस वालों से बात करते होते ऐसा लगता है कि वो स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। समझ में तो आता होगा, शायद मीडिया में स्वीकार नहीं करना चाह रहे होंगे। एक आखिरी सवाल ब्रजेश जी, क्योंकि आप गुजरात को बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली गुजरात में बड़ी प्रॉब्लम्स थी। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन से सबको इम्पैक्ट होता है, डेयरी सेक्टर में भी थोड़ी बहुत वो थी, और फार्मर्स भी थोड़े परेशान थे, मिल्क फार्मर्स भी थोड़े परेशान थे। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हुई हैं।
कि ऐसा नहीं है कि गुजरात में कोई इशू नहीं है, और पिछले 5 साल को देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या इशू है, नहीं है, या कैसे जिन इश्यूज़ की बात हुई उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, आप हमेशा कुछ समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं, तब भी कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी राज्य में कोई समस्या ना हो। समस्या नहीं। लेकिन आप ये भी देखें कि ये सारे के सारे स्टेपल इश्यूज हैं। अगर आप 2002 का चुनाव देखेंगे, आप 2007 का देखेंगे, 12 का देखेंगे, 17 का देखेंगे, आप हर बार मुद्दे यही होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसके सामने एडवांसमेंट क्या हुई है, डेवलपमेंट क्या हुई है। क्या ये सच्चाई है कि मान लीजिए गुजरात में अगर एक प्रोजेक्ट 2013 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से डाला गया, क्या वह 2018 तक कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या साबरमती रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट की कोशिश शुरू हुई, वो पूरी की पूरी 5 साल में बन गई? वो हुआ। जो सड़कों का नेटवर्क, आप जो सो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, आप देखिए ज्योति ग्राम योजना, ये सब वास्तविकता के धरातल पर उतरे हुए हैं। और आप ये- इन्वेस्टमेंट देख और लीजिए। जल से नल वाले जो नल से जल मैं वाली कह रहा हूँ कि आप किसी भी सेक्टर को देख लें, आप जैसे टॉयलेट्स को देख लें, आप नल से जल को आप देख लें, ये तमाम चीज़ें एक एक करके गुजरात देश के बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत सारी यार्डस्टिक पे ऊपर है। तो लोगों की जो एस्पिरेशन है उससे मैच करना चैलेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के अगर यार्डस्टिक्स देखें तो उस हिसाब से गुजरात ने कांस्टेंट प्रोग्रेस की हुई है। आप अगर 2 साल पहले वहाँ गई हो, 2 साल बाद जाएंगे तो पता चलेगा कि 4 नए जो है सो वहाँ पर ओवर ब्रिज बन गए, जो है सो कुछ नई सड़कें खड़ी हो गई, कुछ नई इंडस्ट्री आ गई। अब देखिए ना, महाराष्ट्र से गुजरात में, चाइना से गुजरात में लगातार फैक्ट्रीज आ रही हैं जो धरातल पर है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे ग्रोथ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि गुजरात प्रोग्रेस कर रहा है। हाँ, ये है कि अब कुछ मुद्दे जो सो हमेशा बने रहेंगे, और आप कहें कि भाई कभी रोजगार की समस्या न हो, भारत की आबादी इतनी बड़ी है, इस देश में ये सब स्टेपल इशूज हैं, स्टेपल डाइट की तरह, जो कि हमेशा रहेंगे। जी जी जी। और एक चीज़ जो और निकल के आई है इस रिजल्ट से, कि चाहे इश्यूज हो, चाहे थोड़ी नाराज़गी हो, लेकिन फेथ फिर भी बीजेपी के साथ इसलिए है। क्योंकि जो है सो आप गुजरात में कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है ऐसा जो कि बीजेपी के सामने कुछ बड़ा प्रॉमिस करते हुए दिखता हो कि हाँ, ये लोग, इनके पास ऐसा कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटीज है, इंटेंट है कि उससे बेहतर कर पाएंगे। तो जाहिर है अगर लोगों को ये लगेगा कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं बीजेपी से बेटर नहीं है, मोदी से बेटर नहीं है, तो ऑब्वियसली क्यों कभी भी बेटर उस प्रोडक्ट को नहीं उठा पाएंगे। बिल्कुल, दैट इज द पोजीशन दैट द बीजेपी enjoys. It's in pole position but by a mile, and there's no alternative that is emerging to them. In fact, the alternatives that existed have also been decimated. Brajesh ji, thanks a lot for speaking to us, and all of you, thanks a lot for watching.